Today we will read the topic Pandit Gopabandhu Das and Satyavadi system. Utkalamani Pandit Gopabandhu Das, a national leader of pre-independent India, the maker of modern Odisha, Gopabandhu Das was a philosopher, educationist, a poet, a political leader, a social reformer and a friend of poor. Now we will learn about his life's philosophy. Gopabandhu Das was born in the year 1877, October 9, in a small village called Sivando near Sakhigopal of Puri district. His father was Sri Daitari Das and mother was Swarnamayi Devi. During his childhood, after the birth of Gopabandhu Das, his mother died and he was brought up by his paternal uncle Kamala Devi, and he with his early childhood stage was he faced a lot of suffering during his early childhood stage. Adversity is the true school of life. So, during his childhood stage he suffered a lot and tried his best and decided to serve the society and to uplift the poor and the helpless people. And with that he matriculated from Puri Jilla School in the year 1899 and graduated from Ravenshaw College, Cuttack, and after that he also completed his graduation in law from Calcutta University. Then he engaged himself as headmaster in Nilagiri High School for 6 months, and after leaving that he practiced law in Cuttack High Court. And within this meantime, as he was very much interested in social service and his mission of life to serve the poor, to develop the condition of the people of Odisha. So, he engaged himself in the service of the common man, and lastly that the great soul died in 1928, 17 June. Now, coming to the philosophy of life of Gopabandhu Das. Students, Gopabandhu Das was a person of great dedication towards his society and he had great faith in God. He realized the presence of God everywhere. All the activities when he starts with he feels that God is there and every activity will be successful. So, and he also had implicit faith in Veda and Bhagavad Gita. His idea of dharma is dedicated to social service and human welfare. आमे जेतेबेले गोपबंधुंकर भगवत विश्वास कथा मनकु नबा सेतेबेले जानिबा तांकर भगवान को प्रति दृढ़ आस्था तांकु जाति प्रति सेवा गरीब जनसाधारण सेवा पाई अभिप्रेत करिबारे साहाय्य करिथिला। तेणु से कहूथिले जे नीलाचलनाथ प्रभु श्रीनिवास पुराइबे आशा रखे विश्वास। जेतेबेले बंदीशाल से जीवन बिताउथिले एवं ओडिशावासींकर दुख मोचन करिबा पाई से एई कविता गायकी से मन मध्य विश्वास सृष्टि करेछंती जे निश्चय दिने आमर समस्त कर्म ओडिशा पाई आमे जो त्याग करुछे जो कर्म करुछे आमर देश पाई देशर स्वाधीनता पाई जो संग्राम करुछे सेथरे निश्चिंत भाव में सफल हेबा। तेणु एई सांत्वना लोक मानकु से देउथिले। गोपबंधु दास जने जातीयवादी थिले माने nationalism is the second aspect of
he was a nationalist. He has great belief. He dedicated his life for the cause of nation, and he several times he has been imprisoned for the freedom, for the struggle for independence. देश पाई जाति पाई से सेवा करिबा पाई समस्त को प्रेरित करुथिले एवं गांधींकर जो असहयोग आंदोलन नेतृत्व से ओडिशा रे गांधी असहयोग आंदोलन नेतृत्व नहीं एवं सारा ओडिशा से पदब्रज रे बुली बुली समस्त को देश गठन निमंते देश पाई आत्मोत्सर्ग निमंते उत्साहित करुथिले। तेणु तांकर कवितार मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। ये जो कविता पंक्ति एतिकी आमे अनुभव करिपरिबा जे तांकर जाति प्रेम केते थिला एवं से प्रकृत रे जणे जातीयवादी नेता बा देशर लोक मानक पई से जो उत्सर्गीकृत मनोभाव एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होछि। गोपबंधु वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट एंड तृतीय गोपबंधु जणे मानववादी थिले। द humanism consists of universal love and fullness of life. He said that we are all children of God and it is our duty to serve humanity and renounce egoism. तेणु समस्त पिलामानंकु से मानववाद रे अभिप्रेत हेबा पई चेष्टित करुथिले एवं शिक्षा से कहूथिले जे आमे माने परस्पर को भल पाइबा मनीष मनीष भितर से कौन सी प्रभेद देखु नथिले। भातृभाव आउ स्नेह श्रद्धा समस्तंक भितर रहिबा उचित आउ विश्व प्रीति आ विश्व भाव रे उद्बुद्ध हवा लगी से प्रेरणा जोगाउथिले। सेथिबाई से कहिथिले जे मनीष हिसाब रे आमे सेवा करिबा समाज रे सेवा करिबा आउ एवं तांकर ए कविता माध्यम रे से समाज को मानववादर वार्ता दे चाहती। कापुरुष परी मरिबा जगते नुहे नर पौरुष परहित साधी मरे जे जगते सेही एका सुपुरुष। तेणु कर्म द्वारा आमे समाज को उन्नति पथरे आगे नवा समाजर समस्त असुविधा को दूर करि परिबा। तेणु मनीषर जन्म होइछि अन्यर हित लगी स्वार्थपर हवा लगी नुहे। तेणु सेल्फलेस एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज्ड अमंग द पीपल। गोपबंधु दास प्रकृत रे जड़े मानववादी थिले एवं तांकर चिंता चेतना ये मानवतार परिप्रकाश करिथिला। The next is honesty. गोपबंधु was humble and honest to the core. से तांकर कथा एवं कार्य मध्य कौनसी तफात रखु नथिले। प्रत्येक क्षेत्र से साधुता को श्रेष्ठ स्थान देइथिले। निंदा अपमान ए सब को खातिर न करी आमे आमर कार्य क्षेत्र रे अग्रसर हेबा एई कथा को सबु बेले ध्यान दउथिले। तेणु ए जिनस को मध्य से तांकर जीवन क्षेत्र रे सबु कार्य रे प्रयोग करिसेंती। नेक्स्ट जे नॉन कोऑपरेशन। गोपबंधु दास गांधींकर निर्देश रे ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे जो असहयोग आंदोलन होता से आंदोलन नेतृत्व नहीं ओडिशा रे एवं ओडिशा रे कांग्रेस रा प्रथम संस्थापक थिले पंडित गोपबंधु दास एवं समस्त को ब्रिटिश सरकार को देश तड़ापी ओडिशा रे से
सम्मिलनी संगठन करथिले सम्मिलनी डकाइथिले एवं से सम्मिलनी नेतृत्व नैथिले गोपबंधु दास एवं ता पई से स्वदेशी चिंताधारा लोकमानक मध्यरे उद्रेक करूथिले जे आमे ब्रिटिश रो जिनिस को इंग्रेज मानकर जिनिस को ग्रहण कर व्यवहार करबा नहीं निजे आमर देशी आम देशर जिनिसपत्र आम देश आमको आम स्वावलंबी करवा यही वार्ता दे से असहयोग आंदोलन रे सामिल होगापी ओडिशावासी तरफ नेतृत्व नहीं एवं ओडिशार प्रत्येक नरनारी को यही दिगरे प्रोत्साहित करथिले उत्साहित करथिले। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गोपबंधु दास गोपबंधुंकर जीवन दर्शन तांकर शिक्षा दर्शन को प्रभावित करिछि। से बहु गुणर अधिकारी जड़े मनुष्य शिक्षा दर्शन को बुझा को हेले आमे तांकर शिक्षा प्रति तांकर जो अवदान रही ताकू भल भाव जानिबा दरकार एवं गोपबंधु दास has contributed a lot to the field of education. His contribution to the field of education is unique one. He developed सत्यवादी system of education. एजुकेशनल फिलोसफी को जानिबा को हेले आमे तांकर शिक्षा शिक्षार अर्थ एवं शिक्षा संपर्क रे दैथिबा लक्ष्य गुड़िक जानिबा निहाती दरकार। On the concept of education, Gopabandhu says, by education I do not mean the teaching in school. Education is what was imparted in the ancient Indian institutions and the centers of religions throughout of the province. अर्थ गोपबंधु मतरे शिक्षा विद्यालय दि जाउथिबा शिक्षा उपयुक्त शिक्षा नुहे अतीतर भारतीय शिक्षानुष्ठान एवं धार्मिक अनुष्ठान मानकरे दि जाउथिबा शिक्षा ही वास्तव शिक्षा बोली से कहूथिले। गोपबंधु दास वर्तमान प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को पसंद करि नथिले कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मनीष तैयारी करे नहीं मनीष भितर चरित्र वृद्धि चरित्र मनीष को चरित्रवान करबा पई कौन सी दिगरे सहायक हो पारु नहीं। से चाहि नथिले जे जस्ट गोटे वर्कमैन सृष्टि करबा पई से चाहिथिले मनीष परि मनीषटी सृष्टि करबा को तेणु से भारतीय परंपरार वैदिक जुगर जो गुरुकुल अनुष्ठान रही से अनुष्ठान द्वारा एत मात्रार अभिभूत होइथिले ताको आखि आगे रखी से सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले निजर शिक्षानुष्ठान जहा समाज रे एक अद्वितीय स्थान ग्रहण करिछि। वर्तमान आमे तांकर एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़िबा। गोपबंधु दास to realize the educational philosophy we have to understand the aims of education. Particularly these aims of education are based on his philosophy of life. The first aim, all round development of child personality. गोपबंधु दास चाहिथिले जे शिक्षा द्वारा पिलार सर्वांगीन उन्नति। He wanted wholesome development of the child through education. Education should bring intellectual, social, emotional, and he wanted education should aim at bringing wholesome personality of the child, and the child should develop his intellectual, social, emotional in its right way, in a proper direction. जने सुनागरिक हवा को हेले से तांकर शिक्षा द्वारा गोटे पिलार सामग्रिक विकास चाहिथिले एवं
जड़े सामग्रिक विकास कहले शारीरिक मानसिक आवेगिक एवं सामाजिक विकास निहाती हवा दरकार। जदि जड़े सामग्रिक गोटे पिलार सामग्रिक विकास संभव होउछि शिक्षा द्वारा ताहले से निश्चित भाव में समाज रो उन्नति करिबारे सहायक हेबो। सेकेंड एम द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल लव फॉर ह्यूमैनिटी। गोपबंधु वांटेड child should develop love for humanity. He should love his fellow men. He should develop the fellow feeling and sense of brotherhood. He was the prophet of peace and the preacher of humanism. गोपबंधु चाहूले जे शिक्षा एभरी हवा उचित जहा पिलामानक मध्यरे मानववादर विकास करिवो। आमे समस्ते सभी समान, आमे समस्ते भारत मातार संतान एवं समस्ते समस्त को दुख सुख रे सहायक हेबा। आम भितरे विभेद देखिबा नहीं, आमे परस्पर भितरे शांति सौहार्द प्रतिष्ठा करिबा एवं फॉर दैट रीजन गोपबंधु डेवलप्ड wanted to develop humanism among the children. Third aim of education, development of attitude towards social service. Gopabandhu realized that service to man is service to God. He wanted to render service to the common man at the time of their need, and he realized that the system of education should be such that it should help the children to develop positive attitude towards social service, because social service was the mission of Gopabandhu's life. गोपबंधु समय रे ओडिशा बहुबार प्राकृतिक दुर्विपाकर सम्मुखीन होउथिला। बन्या, मरुड़ी, दुर्भिक्ष, महामारी द्वारा लोक माने बहुत कष्ट रे जीवन यापन करुथिले। सेई मानकर कष्ट को देखी एवं सेमानंकु किभଳି भावरे साहाय्य करा जिवो सेथिपाई से तांकर सहकर्मी मानंकु साहाय्य रे एवं अन्य से निजे लोक मानक पाखक जाई साहाय्य सहयोग जोगै दउथिले। तेणु शिक्षा माध्यम रे से पिला मानक भितरे सामाजिक सेवा प्रवृत्ति रो विकास करैबा पई चाहुथिले। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्रर विकास। गोपबंधु चाहिए शिक्षा माध्यम रे चरित्रर विकास करबा पई। एजुकेशन शुड डेवलप गुड क्वालिटीज विदिन द चाइल्ड। चाइल्ड शुड डेवलप कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, sacrifice for others. When he will develop these good qualities, that will help to make the child a man of character. शिक्षा एभली हवा उचित, से एई भली एक शिक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था करबा पई चाहिछंती जहा मनीषर चरित्र गठन रे सहायक हेबो। तेणु चरित्र गठन होची शिक्षार मुख्य लक्ष्य, जहाँ गोपबंधु तांकर शिक्षा माध्यम रे पिलामानंकर चरित्र गठन को प्राधान्य देइछंती। The next aim of education, eradication of blind belief and superstitions. Education will help to eradicate the superstitions and blind beliefs from the society. During his period, untouchability was in the society which stands as obstacle in social equality. The superstitions and the blind beliefs
that were the obstacles for national development and national integration. शिक्षा माध्यम गोपबंधु दास समाज रु विभिन्न प्रकार अंधविश्वास कुसंस्कार को दूर करने चाहिए। सेथिपाई से बहुबार आंदोलन मध्य करिसेंती। Next aim is attainment of economic independence. Gopabandhu, the aim of education is to make the child economically independent. The system of education should not only make the child a good man, but also should make him self-reliant. For this reason, certain skills, the child should learn certain skills to be self-reliant in future. शिक्षा माध्यम गोपबंधु इकोनॉमिक आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता को शिक्षा माध्यम आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता सृष्टि करने गोपबंधु दासंकर लक्ष्य थिला। शिक्षार लक्ष्य केवल उत्तम व्यक्तित्वर विकास ता नुहे, उत्तम व्यक्तित्वर विकास सहित आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता निहाती जरूरी, नहले भविष्य से बेकार होई बसिबो। जणे बेकारी तेणु शिक्षा उत्तम शिक्षा होची जहाँ व्यक्तित्वर विकास करने सहित आत्मनिर्भरशील करवा। परवर्ती द नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन द प्रोड्यूसिंग मैन नॉट मेरिली वर्कमैन. गोपबंधु दास वांटेड दैट एजुकेशन शुड द एम ऑफ एजुकेशन शुड क्रिएट मैन नॉट मेरिली वर्कमैन. अर्थ होची जे मनीष होची से जो माने मनीषर गुण माने ह्यूमन क्वालिटीज स्नेह दया क्षमा करुणा ये सब गुणर विकास होची प्रकृत मनीषर गुण एवं देश पई त्याग समाज पई सेवा परस्पर भितर स्नेह सौहार्द्य दुखी रंकींकर सेवा करिबा ये सब होची प्रकृत मनीषर गोटे मनीषर गुण हेबा उचित. सेथिपाई मनीष पणिया मनीष भितर सृष्टि मनीष ही से जहाँ भितर यही सब सुगुण गुड़िक विकसित होता है. आजिर शिक्षा व्यवस्था को प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को से विरोध करुथिले. एइथिपाई जे प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे मनीष भली मनीषटीए तैयारी करिवार व्यवस्था बा सुजोग नथिला. प्रचलित शिक्षा व्यवस्था केवल वर्कमैन सृष्टि करुथिला, अर्थात केवल काम करिवो कर्म करिवो किंतु मनीष पणिया केवल से अर्थ रोजगार पई शिक्षा ग्रहण करुथिला. जे अर्थ रोजगार करिवा पई शिक्षा आउ मनीष हेबा पई शिक्षा ए दीटाक को गोपबंधु तांकर शिक्षा व्यवस्था रे प्राधान्य देइछन्ति. नेक्स्ट एम डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. गोपबंधु दास was out and out a nationalist. Education should aim to develop nationalism among the students. जातीयतावाद शिक्षा छात्र पिला भितर जातीयतावाद सृष्टि करबा उचित एवं शिक्षा व्यवस्था एई भली हवा उचित देशर समस्त देश पई आत्मोत्सर्ग बलिदान करबा पई छात्र प्रस्तुत. Developing the feeling of nationalism is another aim of education. Gopabandhu Das wanted that
the education should be such that should develop true nationalism among the students. प्रत्येक छात्र देशर प्रतिटी नागरिक जातीयता भावधारा रे निजको उद्बुद्ध करिबा उचित एवं देश और जाति प्रति से देश और जातिर सेवार निजको शामिल करवा उचित. Every child should learn to be a patriot and to do good for the nation. The next aim is life centered education. जीवन केंद्रिक शिक्षा. Gopabandhu wanted education should be life centered. The aim of education should be life centered. The child should learn throughout his life, and education is not confined only in books. He should learn different qualities, do social service and develop different characteristic social qualities, and should be a man helping his brothers. And education in this way, life centered education should relate to the life needs. Education should enable a pupil to face the hard realities of life with courage and confidence. It should equip the learner with necessary competence and skills for a successful future living. शिक्षा जीवन लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन रे गोपबंधु जीवनव्यापी शिक्षार कथा कहिसेंती. जीवन रे जेते प्रकार असुविधा आसीबो ताकू किभली भाव रे सामना करिया को हबो से विषय रे मध्य छात्र पिलाटी शिक्षा लाभ करिवो. शिक्षा केवल पुस्तक रे निहित नुहे, शिक्षा होची जीवन और जीवन ही शिक्षा. प्रतिटी पिला यही भावधारा रे यही जिनस को यही चिंताधारा को बुझिबा उचित. गोपबंधु तांकर शिक्षा दर्शन रे ओमेन एजुकेशन को मध्य प्राधान्य देइछन्ति. ओमेन मानंको माने नारी मानंकर शिक्षा निहाती दरकार एवं नारी माने सहनशीला धैर्यशीला हे समाज पई तांकर गुरु दायित्व को से लिभेवा सकाशे मध्य दिग्दर्शन देइछन्ति. गोपबंधु तांकर शिक्षा दर्शन को तांकर जीवन दर्शन को एवं शिक्षा दर्शन को रूप देवा पाई से सत्यवादी वनविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले. सत्यवादी वनविद्यालय होछि तांकर मानस संतान, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ गोपबंधु दास. गोपबंधु दास developed the Satyavadi system of education, which is popularly known as the man making factory, in the year 1909. First it was a ME school and was started in the year 1909 with only 19 students, and it was full fledged high school in the year 1914. The garden school was surrounded by banyan, bakul, peepal and churiana trees. The area was popularly known as Gupta Vrindavan. गोपबंधु दास वैदिक जुगर से जो शिक्षा व्यवस्था द्वारा अनुप्राणित होई सत्यवादी ठारे वर्तमान जहाँ को आम साक्षीगोपाल बोली कहचे से जगार बकुल वन मध्य बकुल छुरियाना आउ पीपल बरगछ ये सबूर
परिवेश मध्यरे गोटे मुक्ताकाश शिक्षा व्यवस्था प्रवर्तन करथिले जहा आधुनिक ओडिशार शिक्षा व्यवस्थार एक अद्वितीय अनुष्ठान। गुरुकुल परंपरा रे से शिक्षा व्यवस्था को से आरंभ करथिले। सत्यवादी वनविद्यालय has several features. The first feature is open air guidance school. Features of Satyavadi Vanavidyalaya. The first feature is open air guidance school. Satyavadi Vanavidyalaya was, the classes were organized under the shades of different trees. In the rainy season, the classes were held in the classroom, and in other seasons it was organized under the shades of trees. Being influenced by Tagore Shantiniketan and the ancient Gurukula systems, the high heritage of India, he developed this type of school in Satyavadi. The second feature is the school was based on the high heritage of India. The cultural heritage of India is very high. Teachers were, there was close relationship between teacher and student. The second feature is the school was based on the high heritage of India. It was based on the ancient Indian heritage, the Gurukula system. Third feature is the school was residential in nature, where the teacher and student both are living together. The students who were learning in the school, they were living in the hostel, and all the activities were they were performed, all the activities jointly by सत्यवादी वनविद्यालय शिक्षा व्यवस्था रेसिडेंशियल इन नेचर, जोठी शिक्षक और छात्र माने एकाठी वास करुथिले। प्रत्येक से माने परस्पर भितर से माने निजर काम निजे करुथिले। सेमानंकर समस्त समस्या से माने निजे बॉयज ओन कोर्ट कोटे थिला, तंकर निजर विचारालय रे से माने समाधान करुथिले। जदि समस्या अधिक गुरुतर होउथिला ताहले से शिक्षकंक पाखक आणुथिले बा हॉस्टेल रो जे तत्त्वावधारक तांको द्वारा मीमांसा करा जाउथिला। So in this way it was residential in nature. The fourth feature is simple living and high thinking. सरल जीवन यापन सहित उच्च चिंता धारा ये सत्यवादी शिक्षा व्यवस्थार एक वैशिष्ट्य थिला। शिक्षक माने सरल जीवन यापन निजे सरल जीवन यापन करने सहित छात्र मानक मध्य सेही भावधारा रे उद्बुद्ध करूथिले एवं देश पाई किछि करिबा, समाज रे सेवा करिबा, एई सब उन्नत चिंताधारा रे से माननकु दीक्षित करूथिले। तेणु सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ सत्यवादी वनविद्यालय। आमे आज सत्यवादी वनविद्यालय केतेगुड़े वैशिष्ट्य पढ़िले। Admission to the school was open to all communities, irrespective of caste, creed, sex and status.
every student could take admission in सत्यवादी वन विद्यालय। सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षा सबु श्रेणीर सबु धर्मर आउ उच्च नीच सबु प्रकार श्रेणीर पिला नबार व्यवस्था थिला। सेथिरे से एथिरे education was open to all communities. Admission to the school was open to all students irrespective of caste, creed, color, sex and origin. There was no restriction for interested learners. The institution was students from all communities were getting privileges to take admission in this institution. Education was not denied to any community. So far as education, the provision of education to all communities is concerned, Gopabandhu Das says, everyone has equal rights of being educated, just as the rays of sun and moon are shared equally by the people, and just as religious instruction is being imparted to the human society. शिक्षा रे समस्तंकर समान अधिकार रही, जिमिति सूर्य एवं चंद्रंकर किरण समस्त को समान भाव में मिली थाए, ठीक से परी एवं धार्मिक शिक्षा समस्त को मध्य मिली थाए, ठीक से परी वन विद्यालय रे सबु श्रेणीर सबु वर्गर पिला पाठ पढ़ी परिवार सुविधा रही थिला। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट फीचर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय क्लोज टीचर टट रिलेशनशिप। इन सत्यवादी वन विद्यालय टीचर एंड पीपल बोथ आर लिविंग टुगेदर। टीचर्स वेर द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। दे लर्न द क्वालिटीज सर्विस social service, the good qualities from their teachers, and all the problems of the teachers are directly solve the problems of the students. So, there is a close bonding between teacher and taught, and teacher like the students as their sons. So, सत्यवादी शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षक एवं छात्र मानक भितरे शिक्षक और छात्र भितरे पिता पुत्र संपर्क रही से माने समस्त काम मिलमिशी करुथिले एवं शिक्षक छात्र माने शिक्षक मानकर व्यक्तित्व द्वारा अनुप्राणित होउथिले। द नेक्स्ट फीचर सेल्फ डिसिप्लिन। Self discipline is one of the important feature of Satyavadi system. Students should be self disciplined. Discipline cannot be imposed. Self discipline will help the student to learn better and to develop his personality. It will bring concentration and help for the शिक्षा व्यवस्था रे गोपबंधु आत्म संयमता को प्राधान्य देथिले। आत्म श्रृंखला व आत्म संयमता द्वारा छात्र जीवन रे उन्नति करि परिबो, आगो को बढ़ी परिबो एवं से समस्त प्रकार समस्यार समाधान मध्य करि परिबो। सेल्फ डिसिप्लिन वाज द important aspect of Satyavadi system of education. Next is community living in hostel. As Satyavadi system was residential in nature, all the students were living inside the hostel, and hostel रे पिला माने से माने निजे निजर काम करुथिले, रोषेई करिबा, बगीचा काम करिबा, परस्पर मध्यरे साहाय्य सहयोग भातृभाव भावना नहीं से माने हॉस्टेल रे जीवन यापन करुथिले।
Next feature is vocational education. Like the present system of education, Gopabandhu had given emphasis on vocational education in his system. Different types of skill subjects was introduced in his system to make the child, to help the child to be different type of skill subjects were introduced in his system that will help the child to be employed in future. These are the, then coming to the curriculum, it is one of the feature of Satyavadi system of education. The curriculum was dynamic, flexible and activity centered. It comprised of 3 R's: reading, writing and arithmetic, for the development of 3 H's: hand, heart and head. So, Satyavadi system of education was unique one, features were also unique, and this was this system, education system helped the child for development of for the all round development of the child's personality. And in the next class we shall discuss about other features of Satyavadi systems of education. Thank you all. Thank you, students.